morning, everyone. Let's start. Good morning. Keep your videos on. Good morning, Energy. Sit in any comfortable position. Keep your back straight. Both the hands in Gyan Mudra. So, how we perform Gyan Mudra is our index finger and thumb finger together and simply rest it on your thighs. Relax your whole body. Eyes closed. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Three Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः May all being at peace. May no one suffer from illness. All being able to see what is auspicious. May no one suffer. Om, peace, peace, peace. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands and gently open your eyes. We'll begin with the neck exercise as usual. Always remember, if you have a spondylosis problem, refrain looking down, okay, and just practice as much as possible. Do not overstretch yourself. Okay, let's begin. Exhale, head down. Inhale and stretch your head back. Exhale down. Inhale back. Exhale down. Inhale back. Relax, center. Now head turning right side and left side. Exhale when you turn right. Inhale, center. Exhale to left.
Inhale center, exhale to right. Inhale center, exhale to left. Right, center, left, center, relax. 3 round neck rotation. Exhale and chin down. Inhaling, stretch your head on right side, back, left side. Exhale and come front. When you go back, inhale, right to left. When you come to front, exhale. Inhale back, exhale front. Reverse, left to right. Inhale, go back, exhale front. Left to right, rotate, exhale. Last round. And relax. Now shoulder rotation. Shoulder rotation. Simply keep your fingertips on the shoulder, elbow joint in the front. Inhale, stretch your shoulder up, elbow up. Exhale and down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. 2 more round. Up, down, up, down. Now reverse. Stretching your hand, elbows behind. Inhale up, exhale down. 2, 3, 4, 5. Relax. Now simply stretching our spine upside, and then we'll do side stretches while sitting. So interlock your hands in the front. Turn your palm outside. Elbow straight. Inhaling, stretch your hands up above your head. Take your hand behind till your ear. हाथ को स्ट्रेच करते हुए शोल्डर को ऊपर खींचिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए. एंड होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेल करते हुए राइट साइड पे टर्न कीजिए. डू नॉट लिफ्ट योर बटक्स. जितना स्ट्रेच हो सकता है साइड पे उतना ही. इनहेल सेंटर, हाथ स्ट्रेट रहेगा, हाथ बेंड नहीं होंगे, एल्बो बेंड नहीं होगा. एक्सेल टू लेफ्ट. इनहेल सेंटर, exhale to right. Inhale center, exhale to left. हाथ को स्ट्रेच करते ही रखिएगा, ढीला नहीं छोड़ना है. Exhale right. Inhale center, exhale left. Inhale center and relax. अब ट्विस्टिंग करेंगे. ट्विस्टिंग करने के लिए आपके लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट पाम को राइट नी पे रखिए. राइट हैंड पीछे रहेगा, बिहाइंड योर बैक. नाउ पहले इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट शोल्डर को रोटेट करते हुए टर्न ऑन योर राइट. इनहेल करते हुए वापस कम टू सेंटर. Relax. Now keep your right hand on your left knee. लेफ्ट हैंड पीछे बैक की तरफ. फिंगर टिप्स रखना, पूरा पाम नहीं रखना. तो आप पीछे की तरफ लीन नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपका फिंगर टिप्स रख दीजिए. अब इनहेल करते हुए पहले ऊपर स्ट्रेच कीजिए स्पाइन को, एंड एक्सहेल करते हुए टर्न टू लेफ्ट साइड.
Inhale, center. Come back. One more round. Left knee on right hand. Sorry, left hand on right knee. Exhale and turn to right. Inhale, center. Right palm on left knee. Left hand पीछे. Exhale करते हुए turn, twist yourself on left. Inhale, center and relax. Okay. Now ankle rotation करेंगे. इस तरह सीधे बैठ जाइएगा. दोनों हथेली आपके हिप के साइड पर. बैक स्ट्रेट. ओके. पहले हम टोस को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. आउट, टोस आउट, टोस इन, toes out, toes in, toes out, toes in, toes out, toes in. Now slowly ankle rotation करेंगे. तो जब रोटेट करेंगे टर्न करते हुए टोज को अच्छी तरह बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए. टर्न ऑन राइट. अंदर की तरफ टो स्ट्रेच एंड लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट. एंकल रोटेशन. फीट को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए बाहर की तरफ पुश कीजिए और अंदर की तरफ पुल कीजिए. 5 राउंड्स. नाउ ऑपोजिट साइड सेम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है. 1 2 3 4 5 and relax. स्टैंडिंग में आ जाएंगे. हम स्टैंडिंग आसनास करेंगे. सो हमने जो पहले आसनास किए हैं वो सारे आसन पहले रिपीट करेंगे 1 टाइम एंड देन आज के नए आसन सीखेंगे. ओके. चलिए. हमारा पहला आसन क्या था स्टैंडिंग में? बैकवर्ड बेंडिंग. तो बैकवर्ड बेंडिंग हम कैसे करेंगे? दोनों थंब आपके लोअर बैक को अच्छे से सपोर्ट करेगा. ठीक है. और बाकी की उंगलियां आपके कमर पे, या आप उसे उल्टे भी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे और सही लगे. बट आपके लोअर बैक को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा. ओके. ना इनहेल करते हुए जब आप बैकवर्ड बेंड में जा रहे हैं आपके दोनों लेग स्ट्रेट रखिए. ओके. लेग्स को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है. एंड टाइटन योर बटक्स. ओके. हिप को कॉन्ट्रैक्ट करके रख लीजिए बटक्स को. उससे आप बैकवर्ड बेंड में जाते हुए ओवर स्ट्रेच नहीं होगा. ओके. एल्बो पीछे की तरफ. इनहेल एंड गो बैक बेंड. Exhale and come to center. One more round. Inhale, go back bend. Exhale and center. Okay. अभी हाथ को ऐसे ही रखते हुए हम हाफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे एंड बाद में फुल फॉरवर्ड बेंड. okay? हाथ को अच्छे से कमर पे रख लीजिए. बैक स्ट्रेट. इनहेल, स्ट्रेच अप. एक्सहेल करते हुए सामने देखिए, चिन ऊपर उठाते हुए एंड हाफ फॉरवर्ड बेंड में जाइए. बैक में हंच मत आने देना. बैक स्ट्रेट रखिएगा. इनहेल अप. अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बैक में हंच आ जाएगा, इसके लिए सामने देखना है. एक्सहेल, गो हाफ फॉरवर्ड बेंड. आगे की तरफ. यस, वेरी नाइस. वेरी नाइस मीना जी. जितना हो सकता है उतना ओवर स्ट्रेच मत कीजिएगा बस. अगर आप वहां तक कंफर्टेबली जा रहे हैं दैट्स ओके एंड कम बैक. वेरी नाइस.
रिलैक्स। अभी हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर एक साथ, आप चाहिए तो थोड़ा गैप डिस्टेंस रख सकते हैं दोनों पैर के बीच में, बट 2 से 3 उंगलियों का, ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है ना। दोनों हाथ इंटरलॉक सामने, हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए एंड देन टर्न योर पाम आउट। इनहेल करते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा लीजिए एंड कम ऑन योर टोज, हील को भी रेज कीजिएगा। स्टे देयर फॉर 5 4 3 2 1। Exhale and slowly release your hand and slowly calm down. Okay? Now ताड़ासन करते वक्त आप ध्यान रखिएगा, जब आप आपके हाथों को और पैर को, एड़ियों को उठा रहे हैं तो आपकी दृष्टि बिल्कुल सामने की तरफ रहनी चाहिए। कैमरा मत देखिएगा, सामने की तरफ और एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। इससे आपको उस आसन में ज्यादा देर रुकने के लिए हेल्प होगी, नहीं तो हिल जाता है हाथ पे, बैलेंस छूटता है। ओके, 2 more round. Let's start. Inhale, raise your heels up, hands up, look ahead, stay there for 5 4 3 2 1. Exhale and slowly come down. Last round. Again, inhale, raise your hands up, heels up, come on your toe. 5 4 3 2 1. Exhale and slowly down. Okay, relax. अभी पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे 1 फीट का और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दिस इज नथिंग बट अ साइड स्ट्रेच, स्टैंडिंग में करेंगे हम लोग। सो अगेन हाथ स्ट्रेच सामने की तरफ। Now inhale, hands up, exhale, turn to right. Inhale, center, turn to left. हाथ को अच्छे से खींच के पीछे, कान के पीछे की तरफ खींच के रखिएगा। यस, इनहेल सेंटर, टर्न टू राइट, सेंटर, एक्सेल टू लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड रिलैक्स। Now, next आसन है वृक्षासन। वृक्षासन हम एक ही राउंड करेंगे। Now, stand comfortably and आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो दोनों लेग पे इक्वली रहेगा। ओके, बॉडी को कंप्लीटली अलर्ट और स्ट्रेट करके रुकना है, समस्थिति कहते हैं इसे। नाउ धीरे से विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड, राइट फीट को उठा के पेरिनियम के नजदीक रखिए। यस, नाउ कंफर्टेबल, इनहेल करते हुए दोनों हाथ को साइड से स्ट्रेच करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। पाम से नमस्ते, एल्बो स्ट्रेट रखना, लुक अहेड, सामने देखिए। 5 4 3 2 1. Exhaling slowly down. धीरे से लेग को नीचे छोड़िए। सेम थिंग विथ अदर साइड। लेफ्ट हैंड से लेग को ऊपर खींचिए। इनहेल करते हुए हाथ को साइड से स्ट्रेच करते हुए ऊपर, बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सामने देखिए। 5 4 3 2 1. रिलैक्स। आज का हमारा नेक्स्ट आसन कटी चक्रासन करेंगे हम लोग। पहले थोड़ा साइड ट्विस्ट की, एक राउंड दैट रिपीटेशन हो जाए। तो कटी चक्रासन के लिए दोनों लेग नजदीक, सिर्फ आपका अपर बॉडी साइड पे ट्विस्ट होगा, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। ओके, लेग को अच्छे से स्ट्रेट पकड़ के रखिएगा, लेग्स ढीले नहीं छोड़ने हैं, नी मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ अपर बॉडी।
Inhale, both the hands straight in T shape. Exhale करते slowly turn to your right side. Left hand on right shoulder. Right hand पीछे back के ऊपर. Stay there for 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, center. Same thing on opposite side. Exhale to left. Right hand on left shoulder. Left hand on your back. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, center and relax. Okay. आज का अपना स्टैंडिंग में नया आसन है त्रिकोणासन. सो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है ये. सो त्रिकोणासन इज बेसिकली अगेन अ साइड स्ट्रेच जहाँ पे हम साइड में बेंड हो जाते हैं. ओके. नाउ इससे आपकी बॉडी जो शेप है वहां पे ट्रायंगल का शेप बन जाता है 3 अलग अलग जगह से. इसके लिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं. ओके. बेसिकली जिन्हें माइग्रेन है, हाई या लो बीपी है, नेक में अगर इंजरी वगैरह है तो उन्हें नहीं करना है. अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है या बैक पेन है तो भी आप ये आसन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा. स्लाइड आप जितना जा सकते हैं, डू नॉट ओवर स्ट्रेच. ओके. नाउ इसके फायदे क्या है? नाउ इसका फर्स्ट फायदा ये है कि ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है. बिकॉज नॉर्मल डे से जो स्पाइन की जो मूवमेंट है वो बहुत अलग हो जाती है. तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है स्पाइन में. हंच रिमूव कर देता है. ओके. बैक में जिनके हंच होता है जो ऐसे तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हंच निकल जाता है बैक का. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपका जो वेस्ट लाइन है उसके फैट को रिड्यूस करता है. ओके. बिकॉज ये साइड्स पूरे आपके साइड मसल्स को स्ट्रेच करता है. ओके. नाउ वेरी हेल्पफुल इन ओपनिंग योर हिप, ग्रॉइन, हैमस्ट्रिंग एरिया, काफ मसल्स एंड शोल्डर और चेस्ट को भी ये ओपन करता है. ओके. सो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है लेट्स सी. फर्स्ट पहले आप देख लेंगे एंड देन आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके. एक राउंड फर्स्ट मैं प्रैक्टिस करूंगी एंड देन यू विल फॉलो. सो त्रिकोणासन करने के लिए पैरों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस ले लीजिए. अगर आप लंबे हैं थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले सकते हैं. अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिए. जहां तक आप बैलेंस कर सकते हैं लेग ओपन करने के बाद उतना ही, उससे ज्यादा नहीं. ओके. जहां पे आप बैलेंस आपको इससे आगे लग रहा है बैलेंस नहीं होगा तो वहीं पे रुक जाइए. बेस्ट 3 फीट का डिस्टेंस होता है. ना दोनों लेग रख लिए 3 फीट डिस्टेंस पे. हाथ आपका टी शेप में आएगा. अब आपका राइट टो जो है वो राइट की तरफ टर्न हो जाएगा. लेफ्ट टो कैमरे की तरफ रहेगा सीधे. अभी आपका राइट टो राइट साइड पे आ गया. ना स्लाइटली साइड पे मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ जाएंगे. एक बार आपने नीचे टच कर दिया, फिंगर कंफर्टेबल है, बैलेंस हो रहा है, फिर धीरे से ऊपर की हथेली की तरफ देखिए. बट आप फर्स्ट जब पहली बार आप कर रहे हैं तो आप धीरे स्लाइड होके जस्ट यू कैन टच योर नी फॉर फर्स्ट टाइम. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो डू नॉट गो फॉर पहली बार में यहाँ पे स्ट्रेंथ कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ तक कीजिए एंड देन सेकेंड राउंड में आप नीचे जाने की कोशिश करें. ओके. सेम थिंग आप अब राइट टो अंदर, लेफ्ट टो बाहर, स्लाइड किया लेफ्ट पे, एक्सहेल करते हुए धीरे 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 नीचे एंड अप. इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, लेफ्ट टो अंदर, दोनों हाथ नीचे एंड धीरे धीरे लेफ्ट को नजदीक लेंगे. ओके. जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah.
चलिए स्टार्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम नित्युजी, आई होप यू आर डूइंग इट करेक्टली, दैट्स इट। ओके, just 1 minute now। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, अभी राइट टो को राइट साइड ले लीजिए स्लोली। एक्सेल करते हुए स्लोली नीचे जाए राइट की तरफ, कंफर्टेबली हो जाए जितना जा सकते हैं। या दैट्स इट, परफेक्ट, काफी है। या लुक अप, इनहेल एंड स्लोली कम अप, आराम से ऊपर आइए। अब राइट टो को अंदर ले लीजिए वापस सेम पोजीशन में। नाउ लेफ्ट टो लेफ्ट साइड, एक्सेल करते हुए लेफ्ट में, गो स्लोली, हाँ आराम से आराम से। एक बार आप नीचे पहुंच गए, उंगली फिक्स कर ली, उसके बाद लुक अप, स्टे देयर। या इनहेल एंड कम अप, लेफ्ट टो अंदर एंड रिलैक्स। एक राउंड सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। पहले दोनों टो को ठीक से एक साथ रख लीजिएगा, फिर राइट टो राइट साइड एंड स्लोली राइट साइड पे आपको टर्न करना है, एक्सेल करते हुए आराम से। पहले राइट पे नीचे जाइए मीनाक्षी, एंड उसके बाद ऊपर देखना आराम से। यस, अब कंफर्टेबल है तो ऊपर की तरफ देखिए या सीधे कैमरे की तरफ भी देख सकते हैं। इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर आ जाइएगा आराम से। नाउ राइट टो इन, लेफ्ट टो आउट, एक्सेल करते हुए स्लोली लेफ्ट की तरफ जाइए। इनहेल करते हुए अगेन कम अप टू द सेंटर। ओके, रिलैक्स। अभी आज का हमारा नेक्स्ट आसन है उस्त्रासन। ठीक है ना, उस्त्रासन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिए उसके बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है ना। उस्त्रासन या बेसिकली इसे कैमल पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। आइडियली जिनको अगर सीवियर लोअर बैक पेन है या लोअर बीपी, माइग्रेन है, इंसोमेनिया है, तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करना है, बिकॉज इसमें बैक काफी पीछे की तरफ स्ट्रेच होता है। इसके बेनिफिट्स है, ये बहुत हेल्पफुल है एस्थमा वालों के लिए। एस्थमा को रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, बिकॉज आपकी बॉडी अच्छे से पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाती है। ओके, तो अगर आपका बैक जो है अगर ऐसे राउंड बैक है तो वो भी वो ठीक कर देता है। ओके, अगर स्लाइड बैक एक है तो ये काफी अच्छा है आपके लिए, अगर सीवियर बैक पेन में नहीं प्रैक्टिस करना है इसको। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एंड बिकॉज आपका जो पोस्चर है कंप्लीटली स्ट्रेच होता है, और आपका जो फ्रंटल बॉडी है या जो एब्डोमिनल एरिया है वो काफी स्ट्रेच करता है। ये चेस्ट को भी ओपन करता है, फ्रंट पोर्शन ऑफ टोर्सो, एंड इस वजह से जो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट होती है उसमें भी ये काफी हेल्पफुल है। ओके, सो हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, हम पहले प्रिपरेटरी वाला करेंगे एंड उसके बाद फाइनल पोर्शन में जाएंगे। उस्त्रासन प्रैक्टिस करने के लिए आप आपके दोनों नी पे खड़े हो जाएंगे। अगर मैट पतला है तो थोड़ा मैट डबल कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा नी पे प्रेशर आता है इसमें। ओके, ना दोनों टो अंदर की तरफ। ओके, अब जैसे हमने स्टैंडिंग में बैकवर्ड बेंड किया था वैसे ही अपने हाथ को अगेन अच्छे से सपोर्ट करना है बैक को, लोअर बैक को। okay? अच्छे से होल्ड किया, इनहेल करते हुए
बैकवर्ड में। एक्सेल एंड सामने आ जाए। ओके, 2 राउंड्स करेंगे हम। एक्सेल सामने। नाउ फाइनल कैमल पोज कैसे करते हैं? बैक स्ट्रेट, इनहेल करते हुए धीरे धीरे कोशिश कीजिए आपकी एडी को पकड़ने की। राइट हैंड से राइट एडी, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एडी को आपने पकड़ लिया, अच्छे से ग्रिप आ गया। अब धीरे से चेस्ट को ऊपर करते हुए नेक को पीछे छोड़। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे सामने। आप इसे ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैक के ऊपर हाथ रख लिया, धीरे 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 स्लाइड करते हुए पकड़। एक बार इस पोस्चर में आने के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा बॉटक्स को और चेस्ट को सामने की तरफ पुश करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बैक पे हाथ रख लीजिएगा मीना जी, आराम से। ओके, एकदम आराम से। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड करना। वेरी गुड, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। एक्सेल एंड स्टार्ट। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, गो बैकवर्ड बेंड। Exhale and come in the front. Now, आप टोस को चाहिए तो अंदर की तरफ मोड़ के रख सकते हैं ताकि उसका थोड़ा हाइट ऊपर आएगा, तो आपको टोस पकड़ने, एंकल पकड़ने में इजी हो जाएगा। आराम से होल्ड योर, आराम से। यस, वेरी गुड। अब आपके पेट को आगे की तरफ पुश कीजिए, हिप को आगे की तरफ पुश, चेस्ट को ऊपर की तरफ। इनहेल, stay there for 5, 4, 3, 2, 1. Exhale and slowly come up. Okay? Now जब हमने उत्तरासन कर लिया है तो हमें उसका काउंटर भी करना है। तो क्या करेंगे? कोशिश कीजिए धीरे से वज्रासन में बैठने की, या आपने हील्स। दोनों हाथ ऊपर, इनहेल अप और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड पे। आराम से एक्सेल करके पेट को अंदर खींच लेना। यहाँ पे सी वेब आपने बैक बेंड किया है, फॉरवर्ड बेंड करने से इट हेल्प्स। रिलैक्स, कम अप। ओके, ये सबसे रिलैक्सिंग पोस्चर है, इसे शशांक आसन भी कहते हैं। आइडियली ये रेगुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ योर एड्रिनल ग्लैंड और आपके पेल्विक मसल को बहुत अच्छे से टोन करता है ये। ओके, एंड साइटिका नर्व्स को भी ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है। बट सबसे बढ़िया है जब भी आप उत्तरासन को प्रैक्टिस करते हैं, आपको उसके बाद तुरंत बाद शशांकासन प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा आसन है भुजंगासन। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे एक राउंड। ओके, एंड देन विल लाई डाउन ऑन आवर बैक। ओके, चलिए मैट पे लेट जाइए, पेट के बल पे भुजंगासन प्रैक्टिस करेंगे हम। आराम से रिलैक्स। ना फोरहेड को नीचे रखते हुए दोनों हथेली को धीरे से आपके चेस्ट की तरफ लाके रखिएगा। चेस्ट के साइड पे लाके रखना है दोनों हाथ को। फोरहेड नीचे मैट पे रहेगा ना। धीरे धीरे इनहेल करते हुए रेज योर फोरहेड, चेस्ट अप, चिन अप, स्टे देयर फॉर 5। आराम से अश्विनी जी, आराम से। या
5 4 3 2 1 exhale and go down. आराम से रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। अभी थोड़ा हाथ और नीचे की तरफ ले लीजिएगा टुवर्ड्स योर वेस्ट। या आराम से। Now inhaling slowly, raise your head up, chin up, chest up. Very good. Stay there for 5 4 3 2 1. Exhale and slowly go down. Relax. Now अब आप आपके पीठ के बल पे लेट जाएंगे। ओके, इसके बाद का आसन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, डेमो कर दूंगी, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। सो यू कैन जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक एंड लिसन टू इट। ओके, हमारा नेक्स्ट आसन है कंधार आसन, या इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। सो कंधार आसन में ब्रिज पोज में आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ब्रिज की तरह दिखाई देती है। ओके, नाउ इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये आपके स्पाइन को रियलाइन करता है। ओके, स्पाइन को अच्छे से ये एलिमिनेट करता है आपके राउंड शोल्डर को। एस्थमा वालों के लिए काफी अच्छा है बिकॉज ये आपकी चेस्ट को भी ओपन कर देता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप चेस्ट ऊपर रेज करते हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड पे भी ये स्टिमुलेट कर देता है, बिकॉज आपका जो नेक और चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और फ्लेक्स होता है। ठीक है, एंड ये सबसे अच्छा आसन है फॉर एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ओके, क्योंकि आप आपके हिप को जब रेज करते हैं तो आपका ये एरिया जो है, पेल्विक एरिया है, काफी अच्छे से स्ट्रेच होता है इसमें। एंड ये किसको नहीं करना चाहिए? बेसिकली अगर किसी को अल्सर है या एब्डोमिनल हर्निया है, ओके, तो और एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत संभाल के करना है इसको। ओके, बट अगेन वेरी बेस्ट फॉर हेल्पिंग इन एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ओके, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसको? आप धीरे से दोनों लेग को फोल्ड कीजिए एंड यस, आराम से कीप इट वेरी क्लोज टू योर हिप्स। ओके, दोनों लेग्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, बट हिप लेवल का डिस्टेंस रखिएगा, और टोज अंदर की तरफ। या मीना जी, टो है ना, टो थोड़ा अंदर की तरफ ले लीजिएगा, बाहर की तरफ नहीं, वी शेप में नहीं जाएगा लेग आपका। ओके, आपने आपके एंकल को पकड़ लिया। ठीक, नाउ धीरे से आपके हिप को धीरे धीरे रेस कीजिएगा, इनहेल करते हुए आराम से, धीरे धीरे धीरे। यस यस, वेरी गुड। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए स्लोली कम डाउन। धीरे रखना है, बहुत स्मूथ लैंडिंग करनी है। ओके, जैसे जैसे आपने धीरे धीरे हिप रेज किया है, मिडिल बैक और अपर बैक को रेज किया है, नीचे आते वक्त भी स्लोली करेंगे आप। वन मोर राउंड, इनहेल, रेज योर हिप अप, मिडिल बैक अप, अपर बैक अप अच्छे से, सो दैट आपका चिन लॉक हो जाएगा। इसी वजह से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ओके, नाउ एक्सहेल करते हुए धीरे 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 अंदर आ जाइए, नीचे आ जाइए। आप एंकल को थोड़ा और नजदीक पकड़ लीजिए और हाथ को स्ट्रेच करते हुए पकड़ लेना एंकल को, उससे ग्रिप अच्छी मिलती है और ऊपर की तरफ जाने के लिए। यस, नजदीक रखिए और हाथ को स्ट्रेच कर लीजिएगा, एल्बो हाथ एकदम स्ट्रेच कर लीजिएगा अच्छे स्ट्रेट। ओके, एंकल होल्ड कर लीजिए, या अगर आप कंफर्टेबल है आप मैट पे भी प्रेस करके रख सकते हैं हाथ को। चलिए, इनहेल, रेज योर हिप अप, आराम से आराम से। एक्सहेल एंड स्लोली कम डाउन, रिलैक्स, आराम से। ओके, अब दोनों लेग को स्ट्रेटन कर दीजिए। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन करेंगे, द काउंटर पोज। सो दोनों लेग साथ में, दोनों लेग को ज्वाइन कर लीजिएगा साथ में, हाथ नीचे, हाथ आराम से, हाँ, रिलैक्स।
नाउ होल्ड योर स्टिंग बोन, या आराम से, और नी को पेट की तरफ खींच लीजिएगा। एक्सेल करके कोशिश कीजिए और कितना आप खींच सकते हैं। यस, आराम से। इफ यू आर एबल टू रेज योर चेस्ट एंड चिन अप, ट्राई फॉर इट, अदरवाइज रिलैक्स, कीप योर हेड रिलैक्स। या एक्सेल करना, स्टे देयर फॉर 5 4 3 2 1। स्लोली पहले हेड रिलैक्स कीजिए। नाउ हाथ को रिलीज कर दीजिए एंड लेग्स स्लोली नीचे स्ट्रेटन कर दीजिए। यस, वेरी नाइस। ना, आज का हमारा जो प्राणायाम है, आज का हमारा जो प्राणायाम है वो शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। तो आप स्लोली एक साइड पे टर्न होके बैठ जाइएगा। रिलैक्स। So let me give you some information about this pranayam first. Okay. Now शीतली या जो शीतकारी प्राणायाम है, जैसे नेम सजेस्ट करता है, वो ठंडा करता है आपकी बॉडी को। ओके। शीतली प्राणायाम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टंग एंड शीतकारी के लिए हम लोग टीथ का इस्तेमाल करते हैं। ओके। नाउ शीतली प्राणायाम बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड हेंस इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द फीमेल जिनको हॉट फ्लैशेस की जो प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द मेनोपॉजल का जो पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले के जो सिम्टम होते हैं हॉट फ्लैश वाले, इसमें बहुत हेल्पफुल है ये। ओके। जो शीतली प्राणायाम है या शीतकारी प्राणायाम है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो हैव अ इफेक्ट ऑन योर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंटायर नर्वस सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इट गिव्स यू अ कंट्रोल ओवर योर हंगर एंड थर्स्ट। ओके। तो आपकी जो भूख और प्यास है उसको कंट्रोल करने में भी ये काफी हेल्प करता है। And since it calms down your body nervous system, okay, it calms your mind also। and ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट काम करने की वजह से जो आपका पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम है, या जो आपके बेसिकली जो मेंटल नर्वस एरियाज है, तो उन्हें भी आपको काम डाउन करने में काफी हेल्प करता है। ओके। आपके पूरे मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करता है ये शीतली प्राणायाम। ओके। एंड दैट्स व्हाई आल्सो वेरी हेल्पफुल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके। सो बेसिकली जो मूड स्विंग्स होते हैं हमें ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज में, या जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, उसके लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम दोनों ही काफी अच्छे हैं। ओके। नाउ शीतकारी प्राणायाम में स्पेसिफिकली ये आपके स्प्लीन और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। ओके। नाउ इसका एक और बेनिफिट है कि शीतकारी, या सो बेसिकली हम शीतली और शीतकारी दो अलग अलग प्राणायाम क्यों टीच करते हैं, दोनों का इफेक्ट लगभग सेम ही है। काफी लोगों का जो टंग होता है वो छोटा होता है, तो वो शीतली प्राणायाम नहीं प्रैक्टिस कर पाते, तो उनके लिए होता है शीतकारी प्राणायाम। ओके। जो टीथ के बीच से हम कर सकते हैं। ओके। या किसी को होता है टंग ठीक है बट देर इज अ इशू विद अ डेंटल प्रॉब्लम, तो जिनकी डेंटल प्रॉब्लम है या जिनकी सेंसिटिव टीथ है, उन्हें शीतकारी प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करने हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो तभी ये प्राणायाम प्रैक्टिस मत कीजिएगा। यू कैन प्रैक्टिस इट इन कोल्ड, क्या बोलते हैं, रेगुलर जो समर या अपना नॉर्मल विंटर सीजन है तभी कर सकते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड सीजन में या जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है या डस्ट है, ऐसे एरिया में इसे प्रैक्टिस नहीं करना है। तो हाउ टू डू शीतली प्राणायाम, पहले हम वो सीखेंगे। हम 3 राउंड शीतली करेंगे और 3 राउंड शीतकारी प्राणायाम। ठीक है। तो शीतली प्राणायाम करने के लिए आप टंग को बाहर निकालेंगे और रोल करेंगे एंड वहां से अंदर को एयर को अंदर खींच लेंगे, माउथ क्लोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज। ओके। सो आई विल डेमो वन राउंड फर्स्ट। आराम से टंग
से एयर को अंदर खींच लिया, लिप्स क्लोज एंड धीरे से नोज से आपको एक्सेल करना है। इनहेल विद माउथ, एक्सेल विद नोज। आपको ऑलरेडी अभी से इस एरिया में ठंडक महसूस हो रही होगी, नाक की तरफ या हेड की तरफ यू विल फील। लास्ट वन राउंड, टंग आउट, एंड रिलैक्स। ये प्राणायाम इंपॉर्टेंटली हर उस लेडी को करना है जो प्री मेनोपॉज के स्टेज पे है और स्पेशली जिनको हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम आती है। ओके, अब हम देखेंगे शीतकारी प्राणायाम कैसे प्रैक्टिस की जाती है। शीतकारी प्राणायाम के लिए हम जो दोनों लिप्स है, टीथ है, दोनों अपर एंड लोअर टीथ को अच्छे से टच करके पकड़ के रखेंगे एंड जो उसके बीच का जो गैप है, टीथ के बीच का जो गैप है, उससे अंदर एयर हमको सक करना है। ठीक है, एयर अंदर सक कर लिया, लिप्स क्लोज, एक्सहेल फ्रॉम नोस्ट्रिल। ओके, इनहेल फ्रॉम टीथ, lips close, exhale from nose. Two more round. Inhale, last round. Relax and keep your eyes closed. Your eyes remain closed. Now धीरे धीरे आप आपकी बॉडी के हर एक पार्ट पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये एक ध्यान का प्रकार भी है जिसमें हम काफी हद तक अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत करते हुए सारे इंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दें। जिस बॉडी पार्ट की तरफ कहा गया है उस बॉडी पार्ट की तरफ आप अपना ध्यान लेकर जाएंगे। स्लोली टेक योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर राइट टो। आपका ध्यान आपके राइट टो की तरफ है। राइट टो से धीरे धीरे आपका ध्यान आपके राइट पैर की बाकी उंगलियों की तरफ, धीरे से वहां से मूव करते हुए आपका ध्यान आपके राइट फुट पे है। Move your attention towards your right ankle. Slowly take your attention towards your right calf muscle.
Your attention is on your right knee now. There may be some sensation, some tickling sensations like pains. Just see the pain or feel the sensation. Do not get attached to it. Slowly move your attention towards your right thigh muscles. Right hip. Now slowly take your attention towards your left toe and left fingertips on your left feet. Move your attention towards your left feet, left ankle. Slowly take your attention towards your left calf muscle, left knee, left thigh muscle, left hip area. Relax your lower part of the body completely. You are moving up towards your upper body now. Take your attention towards your lower back, your middle back, your upper back. Relax. Slowly take your attention towards your front side of your body, your pelvic area, abdomen, chest. Relax. Now slowly take your attention towards your right hand. Starting from your right shoulder, right forearm, right elbow, your palm, and the fingers in your right hand. Slowly bring your attention back towards the center. Take your attention towards your left side now. Your left shoulder, left arm, left elbow, forearm, wrist, palm, and fingers on your left hand. Relax. Slowly
Come back towards the center. Bring your attention towards your neck area and back of your neck. Relax completely. Slowly move your attention towards your chin, your lips, nose, eyes, eyebrows, your forehead, ears. Relax your facial muscle completely. Slowly take your attention towards top of your head and back of your head. Relax it completely. With your closed eyes, look at your whole body. Relax it completely. Stay with your body. Now slowly we are coming towards the end of session. Three Omkar chanting. Breathe out. Breathe in. Ah. Breathe in. Breathe in. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Up your eyes. Remove your hand and gently open your eyes. Thank you for today. We'll meet tomorrow. Thank you. I'll be sending feedback link on the app. Please share your feedback for today's session. Thank you.